प्रॉब्लम हियर, ओके, नेटवर्क इशू। तो शायद से मैं यहाँ पे था, यहाँ पे समझाने वाला था आपको। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, यहाँ पे था मैं। कमेंट फास्ट, यहाँ से छूटा था ना कमेंट। ओके, तो कमेंट फास्ट, एम आई ऑडिबल टू यू? कमेंट फास्ट, comment fast, am I audible to you? Please comment fast, comment fast, am I audible to you? Please comment fast. Okay, okay, Jay Misra, yes please. Where are the rest boys? Where are the remaining students? Please comment fast. Only Jay Misra is listening me. Okay, okay, Bijwan, come please. Okay, I am going to start. Okay, I am going to start. Okay, suppose that you have a liquid and you are applying continuously heat to this liquid. Okay, the molecule of water absorb heat, and once the molecule of water absorb heat after the limit, not under the limit, after the limit, अपनी लिमिट से ज्यादा अगर उसने हीट एनर्जी उसमें सप्लाई कर दी तो क्या होंगे? दिस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल एस्केप फ्रॉम हियर and convert into gas. Okay, so initially at the initial condition, while I am not applying the heat, the kinetic energy of the water molecule, as I apply the heat, the kinetic energy of the molecule rise. Getting me what I am going to say? Are you getting me? Means if I am applying the heat, to any matter, it will absorb heat. Understood? It will absorb heat and the kinetic energy becomes high. Okay, so same thing, सॉलिड है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें मैंने हीट अप्लाई की, तो जब तक मैं हीट अप्लाई नहीं कर रहा था, ओके, बिफोर अप्लाइंग द हीट, द काइनेटिक एनर्जी almost zero, negligible, because this is solid. Okay, and as he absorb the heat, the kinetic energy becomes high, and the kinetic energy becomes high, and I am applying continuously heat. What will you observe? You will observe this molecule is escape from the solid, and this will melted down. This will melted down. Understood? So what you are observing here, if I am applying heat, it means the kinetic energy is increasing. Comment fast, how many students are watching this video? Comment fast please.
Am I audible to you? Please comment fast. Please. Where is Aisa? Aisa is not here. Okay, okay, Bijwan, I am watching. Jay Misra also watching. Okay, okay, I am going to continue. Okay, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ. ओके, अब आता हूं मैं पॉइंट पे. तो सॉलिड से बना लिक्विड. ओके, तो जब सॉलिड से लिक्विड बना, इट मींस इसने क्या किया होगा? हीट को एब्जॉर्ब किया होगा. ओके, अभी मैंने फिर इसको हीट दी, तो इसने फिर अगेन क्या किया होगा? हीट को एब्जॉर्ब किया होगा. ओके, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट, जब सॉलिड, व्हेन द सॉलिड बिकम्स लिक्विड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट, so this process is known as melting. Understood? When we apply heat to liquid and liquid absorb the heat, it will convert to gas, and this process is known as what? This process is known as, this is melting liquid to gas. This is known as what is this is known as vaporization. And also we can say boiling. Boiling and vaporization is the same thing. Okay, I will discuss it later. Okay, now what will you observe? If here from left to right I am applying heat and the matter is absorbing the heat continuously and changes the phase. It changes the phase, solid to liquid, liquid to gas. Now I am going to remove the heat. If I remove the heat, okay, reject. If gas reject the heat, if heat is rejected, if liquid reject the heat is rejected, then if gas rejected the heat and convert back into liquid, this phenomena is known as condensation. Understood? And if liquid reject the heat and becomes to solid again, so this phenomena is known as freezing. What is freezing? अच्छा, ये बात समझ में आई आपकी? नहीं आई? इतनी कमेंट करो फास्ट, आपके समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? सॉलिड, अगर आपने क्या किया, सॉलिड को हीट दी, उसने हीट एब्जॉर्ब किया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में. और इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला? मेल्टिंग. अंडरस्टूड? एंड इफ आई एम अप्लाइंग टू हीट टू द लिक्विड एंड लिक्विड एब्जॉर्ब द heat and convert into the gas, this phenomena is known as vaporization or boiling. And if the gas rejected the heat and returned back into the liquid, so this phenomena is known as condensation. Understood? And when liquid reject the heat and convert back into the solid, this phenomena is known as freezing. Understood? इतनी बात समझ में आई नहीं है? कमेंट फास्ट. एक हमारे पास क्या होता है? सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया. क्या कभी ऐसा देखा है सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है? कभी देखा है? अच्छा, जब नवरात्रि के घर में कुछ फंक्शंस होता है, आप कभी गए होंगे, तो आपने कपूर जलाई होगी. कपूर जलाई, कपूर को आपने हीट किया. ये लिक्विड नहीं बनता, ये सीधे गैस बनता है. ये सीधे गैस बन जाता है कपूर. तो सॉलिड से ना वो लिक्विड बना, सॉलिड से वो लिक्विड नहीं बना, वो डायरेक्ट जंप कर गया किसमें? गैस में. तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं क्या? जब इसने हीट एब्जॉर्ब की होगी, तो इसको बोलता हूं मैं क्या? इसको बोलता हूं मैं सब्लिमेशन.
सब्लिमेशन। और कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि गैस इतनी ज्यादा हीट रिजेक्ट कर दे, गैस इतनी ज्यादा हीट रिजेक्ट कर दे, हीट रिजेक्ट इतनी ज्यादा हीट रिजेक्ट कर दे कि वो लिक्विड में ही ना कन्वर्ट हो, वो लिक्विड में ही ना कन्वर्ट हो सीधे, बल्कि सॉलिड में आ जाए, तो उसको मैं बोलता हूं डिपोजिशन। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं। सॉलिड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो गैस में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन बोलते हैं। गैस अगर हीट रिजेक्ट करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड अगर हीट रिजेक्ट करेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। अंडरस्टूड। अगर सॉलिड इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले, इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले, बहुत ज्यादा, कि वो लिक्विड में जाके सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। या गैस जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो थोड़ा सा ना हीट रिजेक्ट करके इतनी ज्यादा हीट रिजेक्ट करे कि लिक्विड में ही ना कूदे, सीधे वो किस में आ जाए? सॉलिड में, तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट फास्ट। तो आई एम गोइंग टू रफ, ओके, प्लीज मेक नोट इट डाउन। ओके, आप नोट बाद में भी वीडियो देख के कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे जो है काफी आगे बढ़ाना है। पहले ही नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कीजिए आप लोग। ओके, मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूं रेगुलर, पर समटाइम आई एम फेसिंग द इशू, लाइक समटाइम नेटवर्क प्रॉब्लम, समटाइम नो कनेक्टिविटी फ्रॉम द सर्वर, लाइक दैट ना। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अब मैं आपको बताऊंगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ओके, सपोज दैट ये आपके पास लिक्विड है, सॉरी ये आपके पास सॉलिड है। इसको ब्लैक पेन से बनाना चाहिए था। ये आपके पास सॉलिड है। ओके, समझना बेटे, ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब आपने इसमें हीट अप्लाई की तो इस पे हीट आई, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको हीट दी, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको हीट दी, इसको दी, इसको दी, ऐसे ऐसे करके ये सब में क्या होगा? हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये सब में हीट ट्रांसफर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक 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 टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जिसके बाद ये हीट लेना बंद कर देगा, ये हीट लेना बंद कर देगा। ओके, ये हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। क्या करेगा? मैं बोलूंगा हीट एब्जॉर्ब क्या होगी? बंद हो जाएगी। हीट एब्जॉर्ब जैसे ही बंद होगी तो ये क्या होगा? वो टेम्परेचर क्या होगा? वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। वो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अंडरस्टूड? जैसे ये हीट लेना बंद कर देगा वैसे ही ये क्या हो गया? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट। ओके, अंडरस्टूड? अब इस पूरे उसको समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपने हीट दिया, इसने हीट एब्जॉर्ब किया। कब तक हीट एब्जॉर्ब किया? जब तक इसकी लिमिट थी। अंडरस्टूड? लिमिट मींस जब तक इसके बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हुए, जो जुड़े हुए हैं ये बॉन्ड जो है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ तब तक ये क्या हुआ? लगातार कॉन्टिन्यूअस हीट एब्जॉर्ब करता रहा। अब जैसे ही ये ब्रेक हो गया तो इसने हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। तो वो वाला टेम्परेचर कौन सा? जिसपे वो हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर दे और वो अपनी फेज को चेंज कर दे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग पॉइंट। ये समझ में आया कि नहीं आया? मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? मैंने हीट अप्लाई किया, हीट एब्जॉर्ब हुआ, आपने जैसे ये पेन है ना, आपने जैसे सपोज द टिप मार्कर है, आपने इसमें लाइटर से क्या किया? हीट दिया, तो क्या एकदम ये पिघल जाता है? नहीं, ये एकदम नहीं पिघलता। ये क्या करता है? हीट को पहले एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कब तक एब्जॉर्ब करेगा? अपने
अपने मेल्टिंग पॉइंट तक एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो मेल्टिंग पॉइंट तक वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वाले टेम्परेचर को जिस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलता हूं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे सपोज इट आपके पास एक आइस है, आपके पास एक आइस का क्यूब है, ठीक है, ये क्या आपके पास आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा है, ओके। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, किसमें है, 0 डिग्री सेल्सियस में। आपने इसमें हीट अप्लाई की, क्या किया आपने इसमें, हीट अप्लाई की, इसने हीट एब्जॉर्ब किया, क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, ओके। और जैसे ही इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बर्फ जमेगा। ये बात समझो, मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 0 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं हीट डालूंगा, अगर मैं हीट इन करूंगा, हीट को इन करूंगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। और अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस में हीट को रिमूव करूंगा, हीट को रिमूव करूंगा तो फिर आइस क्यूब बन जाएगा, अंडरस्टूड। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं हीट डालूंगा तो वो क्या होगा, पानी बन जाएगा। और अगर मैं उससे जो है हीट को रिजेक्ट कर दूंगा, हीट हटा दी मैंने, ओके, हीट को मैंने रिजेक्ट कर दिया तो वो फिर क्या बन जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट फास्ट। कमेंट फास्ट। और वो कि आप साथ ही साथ इसको उतार भी रहे होंगे, तो मैं रब कर दूं इसे, कमेंट फास्ट। मे आई रब दिस थिंग, मे आई रब द नोट्स, प्लीज कमेंट फास्ट। मे आई रब द नोट्स, ओके। देवांश नोटियाल कह रहे हैं यस सर प्लीज रब, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। ध्रुव रमोला यस सर रब, वेरी गुड, ओके ओके, आई एम गोइंग टू रब, ओके, आई एम गोइंग टू रब। आप बाद में भी देख सकते हैं इसको, ओके, आप बाद में देख के इसको नोट डाउन कर लेना, ओके ओके। अब बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। अब आती है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपको पता है फ्रीज पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में, तो हम उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। when a liquid convert into the solids, we can say this process is known as a freeze after rejecting the heat. Okay, if I am asking to you, liquid is converted to solid, heat is absorbed or heat is rejected, so what is the answer, heat is rejected, understood, heat is rejected, okay. So same thing, liquid is 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, and I rejected the heat, मैंने किसी कोई मेथड अपनाया, उसे हीट को रिजेक्ट कर दिया, तो ये किस में बन गया, सॉलिड। तो 0 डिग्री सेल्सियस ही उसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। जो वाटर का जो लिक्विड है आपके पास वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, अंडरस्टूड, और क्या बना देता है, फ्रीज होके क्या बना देता है, आइस बना देता है, हीट को रिलीज करके, यहां पे हीट को रिलीज करके या हीट को रिजेक्ट करके। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी बताएंगे, सभी बताएंगे, अंडरस्टूड। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, यहां पे बहुत मजे की बात बताऊंगा, शायद आपके सिलेबस में नहीं होगी, आपके सिलेबस में है कि नहीं है, देखो ध्यान से समझना। ये सॉलिड है, अंडरस्टूड, ये क्या है आपके पास, सॉलिड है।
इस सॉलिड पे आपने हीट डाली, आपने क्या किया, इसमें हीट अप्लाई किया, क्या किया, हीट अप्लाई किया, हीट अप्लाई किया तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन ये लिक्विड नहीं बना, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। आपने हीट अप्लाई किया, इसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस, 0 मान के चलो आप, 50 था, 50 भी नहीं, 30 मान के चलो, 30 डिग्री सेल्सियस था। अब इसका न्यू टेम्परेचर आ गया 70 डिग्री सेल्सियस, ये गर्म हो गया है। आप बोलते हैं ओ, ये जैसे मेटल को गर्म करते हैं ना, वो गर्म हो गया, लेकिन उसने अपना फेज चेंज अभी भी नहीं किया, वो लिक्विड अभी भी नहीं हुआ है, वो लिक्विड अभी भी नहीं हुआ है। तो टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन फेज चेंज नहीं हुआ। मेरी बात ध्यान से समझ लो, आपने हीट दी, टेम्परेचर 30 से 70 हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन फेज चेंज नहीं हुआ। तो इट मीन्स जो मैंने हीट डाली इसमें, वो हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई होगी ना, वो इसने क्या किया होगा, उस हीट को एब्जॉर्ब किया होगा ना, उस हीट को इसने एब्जॉर्ब किया होगा ना, और जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलता हूं मैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई? आपने हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा लेकिन वो मेल्ट नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर तो चेंज हुआ लेकिन फेज चेंज नहीं हुआ, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। तो ये जो हीट मैंने डाली, तो वो मैं बोलूंगा इसकी कौन सी है, सेंसिबल हीट। दूसरा केस आ जाए, दूसरा केस आ जाए, मैंने इस पे हीट अप्लाई की, सेम। अब मैं इधर से बनाता हूं इसको, ठीक है, उल्टा। इसमें हीट अप्लाई की, क्या की, हीट अप्लाई की, हीट अप्लाई की। अब इसका जो है स्टेट चेंज हो गया, स्टेट इसका चेंज हो गया, ओके, स्टेट चेंज हो गया, ये सही का निशान है, स्टेट चेंज हो गया, ओके, इसका स्टेट चेंज हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ओके। जब मैंने हीट अप्लाई की, जब मैंने हीट अप्लाई की तो इसकी सीधे स्टेट चेंज हो गई, बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर उसका पहले भी 0 डिग्री था, अब भी 0 डिग्री है। अंडरस्टूड? तो ये जो हीट है, अगर इस तरीके की कोई हीट किसी मैटर के अंदर एंटर कर रही है और ये इस तरीके का फिनोमिना अगर हो रहा है, तो उसको बोलता हूं मैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। सर इसका एग्जांपल दो, ऐसे कैसे हो गया कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और उसकी स्टेट चेंज हो गया, ऐसे पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। 0 डिग्री पे आइस होती है, क्या है आइस? आइस सॉलिड है ना, और 0 डिग्री पे ही वाटर भी होता है। अगर आइस ने हीट एब्जॉर्ब की तो टेम्परेचर उसका 0 डिग्री है, तो लेकिन उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली और उसका फेस चेंज हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको बोलता हूं बेटे मैं लेटेंट हीट। क्या बोलता हूं इसको? लेटेंट हीट। एक बार फिर से बोल रहा हूं, हीट अप्लाई किया, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन फेस चेंज नहीं हुआ, उसने हीट एब्जॉर्ब की, तो इसको मैं बोलूंगा सेंसिबल हीट। ओके, मैंने हीट अप्लाई किया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन स्टेट चेंज हो गया, तो इसको बोलता हूं लेटेंट हीट। प्लीज नोट इट डाउन। चलो बहुत लंबी क्लास हो गई, मैं इसके बाद कंटिन्यू करता हूं आपका, ठीक है? ओके, इसको नोट डाउन करना, ठीक है? ओके बाय। अभी तो गुड मॉर्निंग ही हो रहा है, ठीक है? स्टे ट्यून एंड स्टे अलर्ट एंड कीप फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।